evening to one and all. Okay, perhaps I may be late 5 minutes. Now, without any delay, I'm going to start because the 11 persons are here minus 3. It means 8 students are already joined. The discussion which we have started on the administration of justice. Administration of justice is not a easy matter to take it lightly. It has its relevancy as well as without the administration of justice, the states in terms of the international law cannot run. Therefore, the point which we have discussed yesterday relating to the correlation of the thoughts of the various jurists, including the Blackstone. And today's lecture is related to the some new concept of the administration of justice. Under these new concepts, I will try to explain this some essential aspect of the justice, including the correctional justice and distributive justice, justice at the door, and parole system under the criminal law, and the light punishment under the Probation of Offender Act 1958 in India. Then some of the issues which has raised by Malimat Committee, that is also shall be discussed today, because in the year 2004, the former Chief Justice of Karnataka and Kerala, the Mali Mutt, has submitted the report whose the full name was B.S. Malimat. Still the recommendation which has given for the reform in criminal administration of justice in India are not implemented or incorporated in the legislation. Then another part which requires to be discussed relating to the new bills which are being discussed in parliament nowadays in a session after the 18th December of this month. These are the bills Bharati Nyay Sanghita, Bharati Nagrik Suraksha Sanghita, Bharati Sakshi Videyak, which will be called later on after enacting it and getting the assent from the President of India, will become the act. But both the courts indicates some new directions under the jurisprudence also. Therefore, the point which we will discuss today are very, very apt to
अप्लाई इन फ्यूचर। आज का व्याख्यान न्याय प्रशासन की नई दिशाओं और चुनौतियों की तरफ इंगित करता है। इसके अंतर्गत अपार्ट फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट अंडर द क्रिमिनल लॉ, आपराधिक विधि के दंड के सिद्धांत के अतिरिक्त हम ऐसी नूतन सिद्धांतों पर बात करेंगे जो सामाजिक सुधार और न्याय के लिए अति आवश्यक है। इसलिए द पॉइंट विच says about the correctional justice. What is the correctional justice? The system of the correctional justice. Some new words are there, and these words will help you in future. If you will go for pursuing the PhD in Delhi University or some other universities, nobody knows the future of a student. Then certainly, by searching the new words under the administration of justice, you will certainly get the benefit. Because in Central University, the vistas are open for every student, and there is a test being organized by centrally. Center agency is organizing the entrance test for the admission in every stream of the law. If any student will qualify and will come in good merit, then without any other considerations, he and she will get the admission. But only requirement is to know the each and every aspect of law. And as I have said, कि correction in the normal habit of the offender under the criminal administration of justice. It is a system which expressed by Samand. सामंड के द्वारा भी करेक्शनल आपराधिक विधि की व्यवस्था के संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त किए थे और कहा कि व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है, इसके कारणों की खोज की जाए। Though the Samand was the jurist of the positivism, डिटरेंट पे वो विश्वास करते थे, but what are the reasons why a person became the criminal? अपराधी क्यों बनता है? If you will go through the book written by Sutherland, ये किताबें नोट करते जाए, देखते जाएं, ये सब उपलब्ध है मेरी लाइब्रेरी में जहां मैं बैठा हूं, मेरे पास भी उपलब्ध है, आप भी भविष्य में देखें। सदरलैंड ने एक किताब लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। That book is available in the market. Reprint. उस किताब में उन तथ्यों का उल्लेख करते हैं जिनके कारण कोई व्यक्ति अपराधी नहीं, और इट इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी।
criminology and penology is not a subject in Kumaon University, but it is a subject in other universities. Why a person becomes the criminal and why he can be corrected, कैसे उसको सुधारा जा सकता है. Though in jurisprudence it has been given the illustration of the corrective justice relating to the employer and employee relationship. That is a civil matter. But under the correctional justice, if you will see the Malimat committee report, as I have said, the Malimat committee is one of the unique reports in India in the year of 2004. कई बार हम साक्षात्कार में अच्छी विश्वविद्यालयों में बच्चों से पूछते हैं कि मालिमट कमेटी की 4 रिकमेंडेशन बता जाइए. Mostly the people are not aware about the BS Malimat. And from the recommendation of or on the recommendation of the Malimat committee, law reform, criminal administration of justice reform in India. Nowadays also, which was as a correctional justice, meaning is thereby that the rigorous imprisonment, deterrent method should not be used for preventing the criminals or offenders. This is the ideology of correction. And reasons should also be searched out why a person became the criminal. As I have cited the Sutherland, he said that very relevant examples he has given in his book, Principles of Criminology, and written that if at home frequently the guests are coming, बड़ा अचंबा होगा आपको. सदरलैंड की खोज आई है. वो कह रहे हैं कि यदि घर में लगातार मेहमान आ रहे हैं तो बच्चों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा. द मीनिंग इज देयर बाय दैट. कैसे पड़ेगा उन्होंने एक्सप्लेन किया है. You can watch the habit of the child. If 2 persons are talking, then he will come in between. And suppose the attention shall not be given to him, यदि उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो रोएगा या किसी चीज को गिरा देगा. The experiment he has done in the Great Britain relating to the correction in the habit of the criminal. तो दोषी कौन है? दोषी वह है और ऐसा समाज है जिस समाज में अपराधी अपनी प्रवृत्ति सभ्यता के सिद्धांतों के अनुसार नहीं बना पाया. If this society is responsible and a family is responsible ultimately, so why there is a provision for giving the punishment? If punishment is required, that should be given to the other persons where a child brought up. ऐसे समाज में जहां ऐसा अपराधी बन गया उनको सजा दीजिए. What kind of environment, social environment and the atmosphere was there? Thus the correctional thinkers say that, and
The V.S. Malimat also recommended that there should be the correctional form of punishment after the conviction, जिसको मैंने आपको उदाहरण दिया कि 3 बिल जिस पर बहस चल रही है और उसमें संभवतः आपने माननीय गृह मंत्री जी के उद्बोधन को भी सुना होगा। उन्होंने संसद में कहा कि हम कम्युनिटी सर्विसेज के भी पनिशमेंट रख रहे हैं, and that community services punishment recommended by the Malimat, yes, Malimat, and the another side of the matter related to the correction to the offender. Of course, under the reform, there are some special kind of the agencies for special group of the society. समाज के एक विशेष प्रकार के समूह के लोगों के लिए विशेष संस्थाएं भी हैं. But point is that why there is the such type of offense committed by A, whereas the other person may be very poor but not committing the theft. What's the reason? Why a person in the same condition means of the economic condition, is committing the offense, other is not committing it? Therefore, the point of correction, point of reform, whether adversarial system of the punishment should be given to them or in a mistake committed by a person in the first time. If you will see the CRPC 360 Indian approach, I have cited the Prohibition of Offender Act, and there is a provision for the parole also. You might be heard all these things. Why these reformative punishment after the independence in India under the Criminal Administration of Justice incorporated in the regulatory mechanism? On which basis? On the basis of the idea and thoughts expressed by various persons for protecting the liberty of the human being. See one of the book on the liberty and a utilitarian, written by, who has written this book? John Stuart Mill. This is a book of the John Stuart Mill, and if you will see the page number 23 of this book, which is related to the, you might be seen that liberty of thought and discussion, and liberty of thought and expression is the subject matter of the Indian Constitution. A complete book written by Stuart Mill in the year 1850. He born in 1803. So my point is that correction of the offender of, as I have referred, Sutherland's Criminology. It is out of print from the 1916. Edition is available. 1916
16 का संस्करण मार्केट में रिप्रिंट के रूप में उपलब्ध है। तो इन लोगों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के सुधारात्मक दृष्टिकोण के लिए अपराध के कारणों पर विचार किया और उसी को वीएस मालीमठ ने संस्तुति दे दी। बहुत बड़ा संशोधन आया मालीमठ समिति की रिकमेंडेशन के बाद 2005 में। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत स्पेशली अंडर द चैप्टर ऑफ अरेस्ट because of the reason protection of human rights and protection of human liberties as expressed by the Stuart Mill with relate to the freedoms of individual and reasons behind it। कारण स्विट्जरलैंड का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं करेक्शनल में। He says that normally in winter season, जाड़ों के दिनों में संपत्ति संबंधी अपराध ज्यादा होते हैं because of his research। और गर्मियों में शारीरिक अपराध ज्यादा होता है। The factors are there, reasons are also there, circumstances are also there। Then whether there is a question to reform the criminals or to remove the criminal from the society। अपराधी को सुधारें कि अपराध को सुधारें उसका कि अपराधी को ही समाज से बाहर कर दें, which is called in another way preventive theory। Under the criminal administration of justice, there are various questions and issues। In the context of the jurisprudential ideology, तो वो कह रही है क्यों व्यक्ति एक फैक्टर, तो मैंने स्विट्जरलैंड का उदाहरण आपको दिया, उसने जो खोज की छोटे छोटे समूह में बीच में जाकर। दूसरा देखिए, क्योंकि समाज रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी क्या बात है कि थॉमस हॉब्स को देखिए 18वीं शताब्दी में, व्हाट ही सेड अबाउट द हैबिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसने कहा मनुष्य देखा था गृह युद्ध ग्रेट ब्रिटेन का उसने अपने समय में, और निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यक्ति स्वार्थी होता है, ईर्ष्यालु होता है, झगड़ालू होता है और बाय बर्थ होता है। Normally I gives the illustration to the student when I am teaching the criminal administration of justice to support the Thomas Hobbes। स्विट्जरलैंड समाज को दोषी मानता है। हॉब्स कह रहा है कि बाय नेचर होता है और बर्थ से होता है,
तो इलस्ट्रेशन उदाहरण के रूप में मैं जो विद्यार्थियों को हमेशा देने की कोशिश करता हूं, बताता हूं कि जब बच्चा बचपन में शुरू में सांस लेता है, मां की शरीर से बाहर निकलकर वो रोता है, हंसता क्यों नहीं है? वेदर इट इज ए पॉजिटिव habit of the child or it is a negative habit of the child. So in support of the Thomas Hobbes, it can be said that it is a negative habit of the child. Nature gives to him वो नेगेटिव प्रवृत्ति धीरे धीरे समाज में पॉजिटिव हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, डिपेंड्स ऑन दी सोसाइटी. But if society will not support, then certainly the habit of the child will develop in the dark system of the society. इसलिए बिंदु है करेक्शन की. दो, रेट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर, एक रेट्रीब्यूटिव है, लेकिन इन कंट्राडिक्शन ऑफ रेट्रीब्यूटिव देखिए, प्रतिशोध कि शरीर के बदले शरीर, हाथ के बदले हाथ, रेट्रीब्यूटिव कह रहा है, प्रतिशोध. लेकिन एंटीथेसिस ऑफ रेट्रीब्यूटिव फॉर करेक्शन टू दी offender, there is expiatory theory, which says that if a person will feel or will accept own mistake, तो वो सुधर जाएगा, करेक्शनल फॉर्म में आ जाएगा. मनु ऑल्सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इफ यू विल रीड द मनु संहिता, ऑल्सो सेड दैट आफ्टर कमिटिंग ए ऑफेंस, अनलेस, अपराध कारित करने के बाद जब तक व्यक्ति यह स्वयं महसूस नहीं करता है और अनुभव नहीं करता है या दिल से ये बात स्वीकार नहीं करता है कि मैंने गलत किया है, तो क्या वो दंड से सुधर जाएगा? कारावास में प्रिवेंटिव मेजर्स एडॉप्ट करने से उसकी आदतें सुधर जाएंगी? This is a question. Unless there will not be any positive education to reform that criminal. If you will see one chapter written by the DGP, earlier, The jailer is in jail, चैप्टर का नाम था पुलिस इन खाकी. मेरे पास होगा यहाँ, पुलिस इन खाकी एक किताब का नाम है, उत्तराखंड के डीजीपी की राइटर है. तो उसमें एक अध्याय है, मेरा बिंदु है कि एक्सपिएटरी मेथड ऑफ द पनिशमेंट suggested by Manu long back. तो उसको अर्वाचीन समझ में देख रहे हैं. क्या व्यक्ति जब तक अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा तो वो उसके सुधरने की गुंजाइश होती है? आंसर इज नो. इसलिए आई एम जस्ट साइटिंग वन ऑफ द चैप्टर
The name of the book is खाकी इन ह्यूमन बीइंग. अवेलेबल है वो किताब ऑनलाइन. तो उसमें ये देखा गया, कई बार ये घटनाएं आ रही हैं, जेल अधीक्षक रात्रि के समय कैदियों को डकैती करने के लिए निकाल देता था और सुबह होते ही वो अंदर आ जाते थे. It was very difficult to investigate who is committing the offense in particular area. पकड़ी में नहीं आ रहे थे. Under the protection of the prison, हैबिट उनकी थी उनको सुधारने के बजाय विपरीत दिशा की तरफ जा रहे थे. तो अल्टीमेटली जेलर की कॉन्स्पिरेसी थी, पकड़ा गया. तो देयरफॉर द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज जेलर इज इन जेल. जो जेल का मालिक था उसी को जेल होगी. The point is that why the punishment is essential and what kind of punishment should be given. कौन सा दंड दिया जाना चाहिए, उसके कारणों की खोज कैसे की जानी चाहिए. मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर बताया कि किस सीजन में कौन से अपराध ज्यादा होते हैं. It is a technique of investigation, assessment of mind. That's why there is a relation of the criminal's mental status with the crime, जिसको आप मैंसरिया कहते हैं, मेलाफाइट इंटेंशन की बात करते हैं. बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो मेंटल स्टेटस को सुधारने की जरूरत है. हालांकि उस सुधार के लिए सुधार गृह चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिविज्म थिंकर्स हैं वो डिटरेंट थ्योरी पर विश्वास करते हैं, एक्सपिएटरी थ्योरी पर भी नहीं करते, प्रिवेंटिव पे भी नहीं करते. और ऐसा समय था, सामान्य से उदाहरण हैं, आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं कि अपराध के लिए जघन्य पनिशमेंट दिए जाते थे, दंड दिया जाता था. लोगों के बीच में खड़ा करके पत्थर मारना, दीवार में जिंदा चिनवा देना, ऐसे उदाहरण आपको मध्यकाल में मिलते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू साइट दीज इलिस्ट्रेशन. दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया. अग्नि और हवा और जल के माध्यम से दंड दिए जाते थे. एंड दैट वाज द डिटरेंट मेथड. अग्नि में छोड़ दिया, साबुत बाहर निकलो. वेदर दैट वाज पॉसिबल इन द साइंटिफिक इरा, therefore the point is that who is responsible and what kind of punishment should be given. Nature of the punishment and the crime which is being recognized by the legal system of the particular country, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है. Therefore, the time to time there is the need to reconsider the manner. You might be aware, as I have said, the parole. If you will go, you are living in Rudrapur to the Sitarganj jail. It is an open jail. कभी जाइए,
देखिए, कैदियों से बात करिए, वहां कौन से लोग वहां पर हैं, उनका व्यवहार और कार्य तथा जो अपराध उन्होंने किया, किन परिस्थितियों में किया, ओपन जेल में उनको क्या सुविधाएं हैं, whether they have the right. This is one of the ideology of the correction. क्या उनको सीमित समय के लिए परिवार के साथ रहने की भी अनुमति दी जाती है? कौन से अपराधी ऐसे हैं जिनको पैरोल में छोड़ा जाता है? किसको अधिकार है, किसको शक्ति दे रखी है? These are the subject matter of the jurisprudence and why. In law, every time there is a question. And it is your duty as a student not to only to keep in your mind that this is the provision of law, but at the same time, ठीक उसी समय, उसी के अंतर्गत यह भी सोचने की जरूरत है कि ऐसा है क्यों ये। कल मैंने बताया कि लॉजिकल थिंकिंग वैल्यूएबल मेंटल ट्रेनिंग है, कीमती ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है मस्तिष्क का। वाई? Thus I have raised this correctional issue, which is antithesis of adversarial system of the justice. वो न्याय प्राप्त करने के लिए दंड के रूप में भयकारी सिद्धांत, हिंदी में डिटरेंट, शुद्ध हिंदी भारत सरकार की, भय उत्पन्न करना, उसके विपरीत है। भय से भय बिन होत न प्रीति, भय से व्यक्ति नहीं सुधरता है, भय से केवल अपराध से बचने की कोशिश करता है कि मैं पकड़ में ही नहीं आऊं। लेकिन जब भी मौका लगेगा, भय वाला व्यक्ति अवसर की खोज के अनुसार अपराध करेगा। इसलिए मनु की थ्योरी पश्चाताप की थ्योरी कहती है। सुधरने का एकमात्र तरीका उसके मस्तिष्क को परिवर्तित करना। तो जब क्राइम का एलिमेंट ही मैलाफाइट इंटेंशन है और मेंसरिया है कॉमन लॉ प्रिंसिपल में, आप सपोज लिख रहे हैं किसी कंपटीशन में, मेंसरिया आपने लिखा कॉमन लॉ, मैलाफाइट इंटेंशन इंडियन कंसेप्ट ब्रैकेट में। कितना अच्छा लगेगा एग्जामिनर जो इवेल्युएटर है तो सोचेगा तो रियली इसने मेंटल ट्रेनिंग कर रखी है, पढ़ने के दौरान इतना अध्ययन कर रखा है कि अब विद्यार्थी जानता है और समझता है। तो therefore what I have said, the antithesis of adversarial system, and illustration I have given the deterrents. Now what I have said कि पॉजिटिविज्म थिंकर से की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि यदि सुधार गृहों को और कारावासों को आरामदेह प्रशिक्षण
में परिवर्तन कर दिया जाएगा। You might be visit to Delhi. There is one institution established by Kiran Bedi, who was the first IPS officer, known as the Navjyoti Sanstha. रिफॉर्मेटिव, जो ये एनडीपीएस के अपराधी हैं, और उत्तराखंड में भी अभी बात चल रही है, कोई सेमिनार हुआ था, उसमें सीओ सिटी हल्द्वानी ने इस बात को कहा कि हम रिफॉर्मेटिव ग्रह स्थापित करना चाहते हैं जो नशे की आदत में आदतन कार्य कर रहे हैं। The point is that अरविंद सर the continuously reform requires, according to system of the society, for the betterment of the society. Therefore, this system cannot be ignored. वो भी एक विचार है, विचारधारा है। तो सुधार गृह में बदलोगे तो कहा पॉजिटिविज्म वालों ने कि अपराध बढ़ जाएंगे, और जो बेरोजगार लोग हैं वो सोचने लगेंगे कि कारावासों में तो संसाधन है, आरामदेह जिंदगी है। क्या, ध्यान दीजिए, क्या कोई व्यक्ति कारावास में इसलिए जाना चाहता है कि वो बेरोजगार है? सामान्य की थ्योरी को देखिए, वो कह रहा है कि आरामदेह कारावास बना दोगे तो व्यक्ति अपराध करने लग जाएंगे। पराधीन सपने सुखनाई, तुलसीदास का उक्ति को देखिए। जूरिस्प्रूडेंस हर चीज को समाहित करता है। चार दीवारी के अंदर बंद व्यक्ति जिस पर नियंत्रण है, वह क्या संसाधनों के आधार पर अपनी लिबर्टी, जिसको स्टुअर्ट मिल इतनी मेहनत करके विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, उसको प्रतिबंधित होने देगा? टेक द एग्जाम्पल ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल ऑल्सो। एक व्यक्ति अपने घर पे, उसको शौक है, कुत्ता पालता है, चेन से बांधता है, उसको खोलता है और सब कुछ उसको दे रहा है, बिस्कुट भी खिला रहा है, और जब कभी खोलता है कितनी तेजी से भागता है वो। तो the criticism of this correctional ideology, which has expressed by the positivism thinkers, वो तो डिटरेंट को ही स्वीकार करते थे, दूसरी विधि नहीं दिखाई देती थी उन्हें, क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार की थी और उनकी लेखनी में प्रभाव था। तो बिंदु है कि आभास कराना, वो भी ये मानते हैं, वो विचारक भी ये मानते हैं, चाहे वो ऑस्टिनी क्यों न हो, वो विचारक भी ये मानते हैं कि निश्चित रूप से अपराध का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ है, आशय के साथ है। बाय मिस्टेक अगर करता है तो अपराध है ही नहीं, क्योंकि भारतीय दंड संहिता जो अभी एग्जिस्टेंस में है, उसके चैप्टर 4 को आप देखिए, क्योंकि वहां आशय विहीन कार्य हो रहे हैं, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, बट एग्जम्पशन इज देयर। जब मस्तिष्क से संबंध है तो मस्तिष्क को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? ऐसी सजा क्यों नहीं दे रहे हैं कि मस्तिष्क को सुधारिए? बिंदु फिर आता है क्या,
संसाधन इतने पर्याप्त हैं, प्रशिक्षण इतना सुदृढ़ है कि व्यक्ति सुधरेगा। इलस्ट्रेशन है, आई हैव विजिटेड टू नवज्योति संस्था। जब हम लोग यंग टीचर हुआ करते थे, ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, हमने देखा, फॉरेंसिक साइंस के सिस्टम को भी देखा, लाइट डिटेक्टर को भी देखा, नार्को एनालिसिस टेस्ट भी हमने देखे। रोहिणी में लेबोरेटरी है दिल्ली में। अपराधी के मन स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं तो लाइट डिटेक्टर लगाते हैं। नशे की हालत में व्यक्ति से वास्तविक चीजों का पता लगाते हैं नार्को एनालिसिस से। और क्वारीज करने में जब प्रश्न पूछते हैं लाइट डिटेक्टर में, फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है, साइकोलॉजिकल फेस कैसे चेंज हो रहा है, तो सो मेनी टेक्निक्स आर देयर। तो why a person became the habitual offender, hardcore criminal? I have done some work on it when I was in Northeast. There is my book also, which says about the human right prospects and the criminal habit of the offender. Young बच्चे, insurgency was there when I was there, conducted the survey. Then finally I published the book, near about more than 800 pages, conducted the survey. तो देयर आर द रीजन्स। मेरा ये पॉइंट है, 138 सजेशन उसमें आज भी विद्यमान है और बार बार मैं प्रयास करता हूं उसको सक्षम प्राधिकारियों को भेजने का। इट मे बी हियर ऑल्सो। एनीवे द पॉइंट इज दैट correctional methods of the justice. Then you are well aware about the social justice. There is no need to discuss it. But एक दो चीजें मैं बताऊंगा, वो क्या होगा। ये आपको एलएलबी के बच्चे की तरह कोई पॉइंट नहीं बताए जा रहे हैं, आपको फिलोसॉफिकली एनालिसिस करने का मेथड बताया जा रहा है। जो मैं नया कंसेप्ट सामाजिक न्याय एज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, नॉट क्रिमिनल जस्टिस, वो अलग था, उसमें थ्योरी थी। आईपीसी के भी इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, राइटर्स ने उस पर बात की है। उसमें रिफॉर्मेटिव में आपको कैपिटल पनिशमेंट का इतिहास भी देखना पड़ेगा। 1949 के बाद जब बिल राज्यसभा में रखा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय होम मिनिस्टर थे और वो बहस चलती रही 84 तक, बच्चन सिंह के केस तक, जस्टिस पीएन भगवती के ऑब्जर्वेशन एंड देयर आफ्टर ऑल्सो इट मे बी मिट्टूज केस और इट मे बी अदर केसेज। उस एंगल को भी आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। बट अंडर द सोशल जस्टिस एज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो नई बात जिसको आपने खोजना है इंटरनेट के माध्यम से, ये वर्ड यू कैन सी अंडर द preamble, no doubt incorporated in 1976, social. It is a word only in one place,
so far the justice is concerned. Only world is social, but after that economic, political and so on. So on, one of the part is social. That the point says that it means removal of the injustice in the economic life, political life, as well as social life. ये social justice है. Removal of injustice. And what is the test of the injustice? फिर जूरिस्प्रूडेंस कहता है इसका परीक्षण क्या है. कई बार कहते हैं आदमी, कैसे कह रहे हैं आप, कहां लिखा है, किस विधि में ये है, कैसे पता करेंगे हम सोशल जस्टिस. एंटीथेसिस ऑफ द इनजस्टिस है. सोसाइटी से इनजस्टिस को हटाना ही सोशल जस्टिस है. आपने देखा एक टेस्ट जर्मी बेंथम ने बताया था, एक टेस्ट रेस्को पाउंड ने बताया. यहां खींचना पड़ेगा आपको. जो अच्छे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उसमें जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट समाहित होता है. और जर्मी बेंथम का कहना यह था कि किसी भी समाज में विधि के सुधार के लिए यह आवश्यक है क्या अधिकतर लोगों को उससे सुख मिल रहा है. यदि सुख मिल रहा है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर है, तो वह विधि अच्छी है, उससे सोशल जस्टिस मिलेगा. क्योंकि सोशल मीन्स सोसाइटी, एंड दैट सोशल जस्टिस which reflects the aspect of the welfare of the people, and welfare of the people in the society, how it's possible. And as I have said that the test, which is what is the test in this regard? Of injustice. तो समाज के अधिकतर लोगों को जो सुख मिलता है वो जस्टिस है. रेस्को पाउंड क्या कहता है? रेस्को पाउंड कहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मिनिमम फ्रैक्शन. तब भी मैंने पढ़ाया था, पता नहीं कितना समझ रहे हैं, कितना चीजों को ध्यान में रख रहे हैं, कितना नोट कर रहे हैं, ये आप लोगों पर निर्भर करता है. लेकिन ये उदाहरण बार बार आते हैं. तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन समाज में है कि नहीं है? लोग ज्यादातर खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? यू कैन कोरिलेट दिस कंसेप्ट विथ the observation of the Dr. Ambedkar also jurisprudentially. क्योंकि जितनी डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, बरसों लगे, 2 साल 11 माह 18 दिन, जो कुछ भी लगे, वो सारा जुरिस्प्रूडेंस था. तो डॉक्टर अंबेडकर सेड दैट. अब उसको पॉलिटिकली एनालिसिस करिए. जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस का मापदंड क्या है, वो पार्ट 4 के संदर्भ में कहा उन्होंने. पॉलिटिकली द कंसेप्ट विच आर enumerated under part 4 of the constitution, if
The elected government shall not apply these dreams and goals. यह सपने और ये उद्देश्य तो वो निर्वाचित होके नहीं आएगी, ज्यादा सुख देना पड़ेगा। कई बार आप देखते हैं सामाजिक गलियारों में बहस होती है कि एक्स आएगा वाई आएगा इलेक्शन में, लेकिन अल्टीमेटली मापदंड ये होता है कि पॉलिसी ज्यादातर लोगों ने स्वीकार की कि नहीं की, बहुतायत में लोग क्या समझते हैं, कहने से कुछ नहीं होता। तो यह है टेस्ट, जिसको न्याय में मैंने एक फैक्टर आपको बताया था, सोशल ओपिनियन। जस्टिस के लिए ओपिनियन, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेंस, सोसाइटी उसको स्वीकार कर रही है। तो देयरफॉर टू रिमूव द इनजस्टिस फ्रॉम द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड द सोशल जस्टिस, एंड टेस्ट ऑफ द injustice, as you have seen, the test given by Jeremy Bentham, Resco Pound, and with relate to Constitution of India, the observation of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Then how the justice affects the social life and political life. If in society the maximum persons, means the human beings, are very much happy with the justice, then certainly that is the better test. And another side, दूसरी तरफ देखिए, second part of this concept of the social justice, under the justice, न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय। बच्चों, हमेशा शिक्षण संस्थाओं के द्वारा जो प्रयास किया जाता है कि व्याख्यान आयोजित करें, उससे बच्चों को सीखने के लिए किया जाता है। व्हाट वर्ड आई हैव यूज्ड, द सोशल जस्टिस अंडर द जस्टिस। अगर लिखने की शैली विद्यार्थी की उत्तम होती है, सिविल सर्विसेज में भी मैंने देखा, उनके पास लैंग्वेज होती है, अध्ययन होता है उनका, और अध्ययन के माध्यम से भाषा को सुसज्जित बना करके अपनी बात की अभिव्यक्ति करने का पृथक तरीका होता है। सामान्य सी बात थी, पृथक तरीका, और ये पृथक तरीका निरंतर कार्य करने से होता है। व्हाट आई हैव सेड द सोशल जस्टिस अंडर द जस्टिस। क्यों कहा, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसलिए कहा इन द सोसाइटी, इन एवरी सोसाइटी। आपने रोमन सिस्टम को देखा, रोमन सिस्टम में तो नागरिकता तक नहीं थी, स्लैब्स थे, प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होते थे, और विधि बहुत सालों तक उनको संपत्ति मानती रही। सामाजिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन का कारण था क्रांतियां, सामाजिक परिवर्तन का कारण था आजादी, सामाजिक परिवर्तन का कारण था समता मूलक समाज की स्थापना। तो राइट थिंकिंग पीपुल ने
जो अनप्रिविलेज्ड क्लास था, जो न्याय की धारणा से बाहर रखा गया था, उसके बारे में लिखना शुरू किया। तो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट वहां पर फिर बदल गया और वह सबको विधिक चश्मे से देखने लगा। वह न्याय और कहने लगा जिनको नहीं मिला है उनको अधिक मिलना चाहिए। मीनिंग वॉज देयर बाय दैट द कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट, जिनके पास है और जिनको मिला ही नहीं, है ही नहीं। द पर्सन हैव द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फ्रॉम द एंसेस्टर्स। ऐसे भी देश हैं जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। व्यक्ति जब एक निश्चित अवस्था में हो जाता है, चाहे वह न्याय की धारणा देखिए, चाहे वह सरकारी ही मुलाजिम क्यों न रहा हो, यदि उसके पास संसाधन हैं, उन संसाधनों का आकलन करते हुए उसको बेनिफिट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट 0 हो जाते हैं। और वह व्यक्ति जो जीवन में संसाधन विहीन रहा, सोशल जस्टिस, उसको असमर्थ होने की अवस्था में सुख सुविधाएं उतनी ही दी जाएंगी जितने की सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास अर्जित संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति से सुख सुविधा लेगा। जिसके पास नहीं है उसको सरकार देगी। यह है सामाजिक न्याय। अनप्रिविलेज्ड, जिसके पास है ही नहीं, हैव नॉट, नो रिसोर्सेज आर देयर। Then in conclusion of the social justice, you can say removal of inequality from the society, समाज से असमानता को बाहर करना। ये जुमला समता का बड़ा बड़ा सुंदर लगता है। प्रत्येक व्यक्ति समता की बात करता है, कैसे और क्यों। क्या है ये समता? ये पूरी समता संसाधन युक्त और संसाधन विहीन है। अवसर नहीं मिला समाज के कारण। अब विद्यार्थी कहता है सर मैं कंपटीशन में सफल नहीं हो रहा हूं। अरे सफल नहीं हो रहे हो, वो कारण समाज का नहीं है, वो कारण तो आपका परिश्रम न करने का है। उसको समता नहीं कहेंगे हम। समता कुछ और है, जो सामाजिक वातावरण में अपनी गलती के कारण नहीं है, बल्कि समाज के कारण है। अवसर विहीनता, संसाधनों को किसी वर्ग विशेष के द्वारा केंद्रित किया जाना, और दूसरे को उससे वंचित रखना, ऐसा इतिहास है। तो वो सोशल जस्टिस की बात करता है। Therefore, for that purpose, in a rule of law, as you have seen the concept of एविडेंसी, कल मैंने उदाहरण दिया 1885 का रूल ऑफ लॉ की बात की। If you will focus on the
the thoughts of the A.V. Dicey with reference to the situation of Great Britain. It says that this inequality for providing social justice can be removed only and only by the enacting the law. By whom? By the state. For what purpose? किस उद्देश्य के लिए? For the purpose of providing the social justice. सामाजिक न्याय देने के लिए तो लॉ चाहिए. In a system where there is a rule of law, ये कहना चाह रहा हूं. And that aspect expressed by the Indian competent courts also. And some books in jurisprudence also quoted the observation of M.C. Chagla. He was the Chief Justice of Bombay High Court. And he said that social justice is the antithesis of laissez-faire. पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्या समझ में आप लोगों का कितना आ रहा, क्योंकि इसके लिए करना क्या पड़ता है बच्चों कि जो टर्म आते हैं इनको पढ़ना पड़ता है, इनको ढूंढना पड़ता है और फिर समझना पड़ता है कि ये किसने दिया, कब आया, क्यों आया. अध्ययन की पद्धति को बनाना पड़ता है. तो एमसी छागला also expressed in very beginning after the independence and after the enforcement of the constitution in India in a case. And that was the case of Prakash Cotton Mills case. Long back, 1957. Said that social justice is the antithesis of laissez-faire. अब laissez-faire मैं समझा चुका हूं कई बार, मैं उसमें इंटर नहीं कर रहा हूं. आपकी ड्यूटी है इन टर्म को देखिए. There was a concept of the social justice in India with relate to the jurisprudential system for the betterment of the unprivileged class. ये भी एक है. अब देखिए अरस्तु जो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, उसके बाद खत्म करता हूं क्योंकि आपको खुद पढ़ना है. मैंने एक सिस्टम बताया आपको कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन आप लोग करें कैसे कोरिलेट करें चीजों को इधर उधर से. और ज्यूरिस्प्रूडेंस में बता दूं फिर भी जो भी इस व्याख्यान में जुड़े हुए हैं 4-6 बच्चे, क्योंकि मुझे मालूम है प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता है. ये मेरा अपना अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है मेरा. लेकिन कुछ 2-4 हो सकते हैं. तो जो जुड़े हैं उनको मैं फिर भी बता दूं कि विधि शास्त्र का अध्ययन विगर समग्र अध्ययन के असंभव है. समग्र अध्ययन मीन्स सारी चीजों का ज्ञान पढ़ते रहना तो विधि शास्त्र है. तो मैं अब अरस्तु पे जा रहा हूं. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए ये कोई ऐसी विधा नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस की चम्मच में दवाई ली और पिला दी, कहा सारा ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको आ जाएगा. ये अध्ययन की विधा है. अब वो अरस्तु ने जिसकी खोज की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कल मैंने बताया कि एक चैप्टर लिखा हुआ है R.W. डायस. आप किताबें ही नहीं देखेंगे, सोचेंगे ही नहीं, कभी लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे, नहीं है तो मांग भी नहीं करेंगे कि ये किताबें हमारे पास होनी चाहिए. कहां से अध्ययन आएगा? यही अंतर है कि एक बच्चा, इवन मैंने शिमला की लाइब्रेरी में देखा, HP यूनिवर्सिटी में, पिन ड्रॉप साइलेंस इन लाइब्रेरी. आई हैड जस्ट फ्यू मंथ विजिटेड टू द लाइब्रेरी. टेलीफोन भी नहीं बजाने देते हैं. आपको शायद मैंने
ऑफलाइन में भी बताया वहां। बीएचयू की लाइब्रेरी का उद्देश्य एनीवे जो भी करें जैसा भी करें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रिलेटेड टू द ऑनर, सम्मान, वही जर्मी बेंथम कह रहा कहीं 16 प्रकार की खुशियां, 12 प्रकार के दुख, सुखवाद का टेस्ट। ये कल्पना हो रही है, लेकिन ये एलएलएम के बच्चे का सब्जेक्ट मैटर है। ये सुखवाद का टेस्ट 1748 से पहले 18वीं शताब्दी के बिगनिंग में जर्मी बेंथम निकाल रहा है, तो ये कह रहा है सम्मान का सुख डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। एज आई हैव सोन दी RWM डायस, क्या आप ये मानते हैं कि 1-1.25 घंटे का जो मैं लेक्चर देता हूं और शुरू हो गया और देने लग जाता हूं, पढ़ता हूं, 3-4 घंटा स्टडी करता हूं, दो आई हैव रिटन बुक ऑन इट, दैट इज पब्लिश्ड गवर्नमेंट। वो इतना आसान नहीं था, बट सम्मान का सुख जर्मी बेंथम 18वीं शताब्दी में कह रहा है, डायस उसका एनालिसिस कर रहा है। न्याय की धारणा और न्याय प्रशासन के अंतर्गत हम वितरणात्मक न्याय की बात कर रहे हैं और जूरिस्प्रूडेंस के विभिन्न जगहों से उदाहरण ला रहे हैं। तो सम्मान चाहिए, संपत्ति चाहिए, एसेट्स चाहिए, ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, और समाज में पृथक तरीके से लोगों के मध्य सौहार्द की खुशी, 16 प्रकार की, डिस्ट्रीब्यूटिव है। एंड दैट इज द पॉसिबल इन ए सोसाइटी वेयर देयर इज ए डेमोक्रेसी। क्योंकि लिबर्टी पे स्टुअर्ट मिल 1803 में पैदा हुआ आदमी 1857 के आसपास किताब लिख गया, और उसकी धारणा हमें आज आवश्यकता पड़ रही है। 300 साल पहले अभिव्यक्त की गई बात, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के रास्ते हैं ये सब। तो therefore one of the concept relating to the procedural justice, which is related to the natural justice also, नैसर्गिक न्याय है ये, not only confined up to the 2 principle or 3 principle, but so many things are there. Thus jurisprudentially I had tried to analyze the various theories which relate to the existing method of the administering the justice, न्याय को लागू करने के विभिन्न सिद्धांतों को और इस स्थित विशेष पर उदाहरणों के साथ कोशिश की कि आप कुछ समझें। लेकिन यह समझ कोई कथा वाली समझ नहीं है, इट्स नॉट ए स्टोरी। यह समझ अध्ययन के लिए आपको प्रेरित करने वाली है। अध्ययन नहीं होगा तो समझ नहीं होगी। इसलिए दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स who want to success in the field of law. Please try to study and then try to understand the thoughts of the jurist. With these words, thanks to all. But tomorrow there will not be class. Tomorrow is 21st, 22nd and 23rd. As one of the few students yesterday asked me that rights and duty they want to listen.
कितना कितना सुनाएंगे वो उनका उन पर निर्भर करता है। मुझे अच्छा लगता है कि यदि कुछ पकड़ पाए, कुछ कर पाए, कुछ सोच विकसित कर पाए, अध्ययन की गति को दिशा देने लगे, उसमें कोई चीज बाधा नहीं होती है, तो ऐसा लगेगा कि शायद सफल रहा। ये मेरा मानना है कि आप उसको देखिए। ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir.